Hi everyone, it's Math with AUB. Our question in the field of quantitative mathematics. One of my earliest reel is present on this question, a humongous question, an elegant question. A single discount equivalent to a discount series of 20%, 10%, and 25% is equivalent to what? First impression for a student is that 20 plus 10 plus 25, 55, 55 is the right answer. It is not the case. It is not the case. How to handle this? In case of percent, the total is not given 100. First discount on 100, 100 minus 20, that's our 80. That's our 80. Now, after first discount of 20%, we have to pay 80% of the price. 80%, 80%. Then second discount of 10% on 80. 10% of 80, 10% of 80 is going to be 8, cancelled out 8. So 80 minus 8, after obtaining or giving a discount, second discount of 10%, we have arrived at 72% of the total price. Then third discount of 25% we have to give on this 72. It is to be 25%, 25% of 72. 72 to remove percent dividing by 100, there is 4. Applying table of 4 is 30, 18. 72 minus 18. The next is 54. Next is 54. The student jumped to the conclusion that's our answer. He has asked what is discount instead of 100%. Instead of 100%, we have to pay 54%. Instead of 100%, we have to pay 54%. And we are interested in discount. Discount is to be 100 minus 54 is equal to 46. 46. First trap, that's your second trap. It is our right option. It is our right option. So a single discount of 20, 10 and 25 always results an equivalent discount to 46% discount. 46% discount. And order doesn't matter. Order doesn't matter. First give a discount of 25%, then 10, 20. In any order, discount remains same. Discount remains same in that case. Let's see and find out whether our result is not affected by the series sequence of selection. Look at this. Suppose 10, 20, then 25, 100, first 10%, 100 minus 10, 90. After 90, second discount of 20, 20 over 20%, to remove percent divide by 100, 80. 90 minus 18, how much? 72. So third discount on 72, 25% discount on 72, 72, 25%. That's our 4, that's our 18. 72 minus 18, that's again 54. Instead of 100%, we have to pay 54, 54. So our discount is 46, 46, not 54. Instead of 100%, we have to pay 54. Our discount is 46. In any order, first take 25, then take 20, 10. This make no difference. This make no difference. Order doesn't matter. Order doesn't matter. Order doesn't matter. In any order, if the discounts are 20, 10 and 25, in any sequence, they leads to a total discount of 46%. Okay. Let me explain to you same question on the insistence of many in the local dialect in Urdu. I try my best to explain to you. आपको डिस्काउंट सीरीज बतानी है. अब डिस्काउंट सीरीज गिवन है, पहले 20% की, दूसरी 10 की और 25% की. हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है. अलग अलग डिस्काउंट ये तीन, एक इक्विवेलेंट किसके बराबर है, किस लमसम डिस्काउंट के बराबर है. स्टूडेंट क्या करता है कि सिंपली इसे ऐड कर देता है. द बिगिनर्स, द न्यू कमर्स, 20, 10, 25 यार ये 55. और जो अच्छे टेस्ट मेकर्स हैं वो पहला ऑप्शन ये आपके लिए लिख दिया 55. इजीली आप टिक करेंगे और 100% कॉन्फिडेंट दैट वी आर प्रेटी कूल, इट्स आवर राइट ऑप्शन, हमने सही किया. दैट इज नॉट द केस. इट इज नॉट द केस. इस तरह नहीं होता. पहले आप डिस्काउंट देंगे 100 पे, 100 पर 100 का 20%, वही 20 होगा. 100 में से 20 क्या, 80%.
यानी कि आपने पहला डिस्काउंट हासिल किया 20, तो आपको प्राइस पे करनी है 80%। दूसरा डिस्काउंट आपने 80 पर देना, 80 पर देना, 10% ऑफ 80, 10% ऑफ 80। ओके, 10% ऑफ 80। हम परसेंट आते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, वी आर फैमिली इनफ। 8, हम 80 पर पहुंचे थे, हमें 80 पर मजीद 8% डिस्काउंट मिला। 80 माइनस 8 कितना हो गया जी? 72 हो गया, 72 हो गया। और तीसरा डिस्काउंट हमने 25% का 72 पर देना है, 72 पर देना है या लेना है? 72 25%, 25%। ओके, परसेंट हटा दिया मैंने डायरेक्ट, 100 से डिवाइड, 4 मरतबा टेबल लगा। ये 4 का टेबल 72 पे 18 मरतबा, 72 में से 18 कम कीजिए, यू विल गेट 54। ये भी एक मसला है, आप कहेंगे 54, नहीं नहीं, उसने आपसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है। आपने इंस्टीड ऑफ 100% 54% पे करना है। इंस्टीड ऑफ 100% आपने 54% पे करना है। और आपसे पूछा गया कि इन तीनों डिस्काउंट को अगर हम मर्ज करें तो कितने का डिस्काउंट होगा? दैट इज योर डिफरेंस ऑफ द टोटल इनिशियल माइनस ये आपका ये आया। 100 की जगह हमने 54 पे करना है, 100% की जगह हमने क्या करना है? 54 पे करना है। तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा? 46। 46। लुक एट द मिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 द बिगिनर्स वन। जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत हल भी कर लेंगे, 54 आ गया, वो एकदम दे विल जंप टू द कंक्लूजन दैट इट इज राइट ऑप्शन। नहीं नहीं, ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है, वो आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है। 54% तो आपने पे करना है, वो आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है, वो आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है। 100 की जगह हमने 54 पे करना है, 100 की जगह 54 पे करना है, यानी कि 100 माइनस 54, 46 इज द राइट ऑप्शन। हमें 46% का डिस्काउंट। आप 3 डिस्काउंट दे दे, 20, 10, 25, या एक ही डिस्काउंट देते 46 का, दे आर इक्विवेलेंट। और दूसरा, इसी क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन दी जाती है, थोड़ी तब्दीली। अगर हम इनका ऑर्डर आगे पीछे करें, पहले 10 का दे, फिर 20 का, फिर 25 का, या पहले 25 का दे, फिर 10 का, फिर 20 का, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लमसम डिस्काउंट 46% ही मिलेगा। देखिए, पहले हम 20 का दे देते, फिर 10 का, फिर 25 का, इन एनी ऑर्डर। पहले 20 का डिस्काउंट दे, 20% का, फिर 10 का, फिर 25 का। ये देख लेते देवी और सजो, 100 माइनस 20, पहले डिस्काउंट के बाद हम पहुंचे 80 पर। दूसरा डिस्काउंट 10% का हमने 80 पर देना, 80 पर, 10% ऑफ 80, 10% ऑफ 80, 80 इंटू 10% डिवाइडिंग बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से तकसीम करेंगे, परसेंट हटाने के लिए हमारा 8 आया। हम 80 पर पहुंच चुके थे, 80 में से फिर हमने 8 कम किए। हमारे सेकंड डिस्काउंट के बाद हमने जो पे करना है ना रेशियो परसेंट, वो 72 है। और तीसरा डिस्काउंट हमने 25 पे देना है, 72 पे देना है। 72 पर 25% का डिस्काउंट, 25%, परसेंट साइन हटाएंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100, 25 का टेबल 100 पे 4 मरतबा, और 4 का टेबल 72 पे 18। 72 माइनस 18 इज 54। 54 वी हैव, इंस्टेड ऑफ 100% वी हैव टू पे 54। 100 की जगह हमें, 100% की जगह हमें 54% पे करना है, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला? 100 माइनस 54, 46 का। 46% इज आर lump-sum discount. Lump-sum discount 46. It's my tiny effort to you guys to explain to you some elegant question of quantitative mathematics. It's all by itself. Next.